Welcome to FK Super Classes. This is third lecture on life processes for class 10th Science. In the first lecture, I have explained what are life processes, how we'll differentiate living organisms from non-living organisms, what are the different common characteristics found in living organisms. In nutrition, I have explained autotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, I have discussed photosynthesis and chemosynthesis. In the second lecture, I have explained heterotrophic nutrition. Different categories of heterotrophic nutrition, that is saprophytic nutrition, parasitic nutrition, holozoic nutrition. And in holozoic nutrition, I have explained the 5 stages with which all food goes through, that is digestion, absorption, that is digestion, that is ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Human beings also follow the holozoic mode of nutrition. In my second lecture, I have also discussed nutrition in amoeba. I have also given the introduction on nutrition in human being. In today's lecture, I will explain nutrition in human being alimentary canal. Nutrition in human being. Human beings are complex animals which have a complex digestive system. ह्यूमन बीइंग एक कॉम्प्लेक्स एनिमल है और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड सम एक्सेसरी ग्लैंड्स. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बना हुआ है एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ग्लैंड से. The alimentary canal is divided into several parts like esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. Alimentary canal जो है ना इसमें बहुत से parts हैं. Esophagus है, stomach है, small intestine है, large intestine है, rectum है और एनस है. ये सारे पार्ट्स मिलकर के क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं. सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज आर द एक्सेसरी ग्लैंड विच लाई आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल. डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरा क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड्स है. द एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या है? सैलिवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैंक्रियाज है जो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर है. एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स हैं? ओसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है. और एक्सेसरी ग्लैंड्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं? सैलिवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैंक्रियाज है. और ये सब क्या है? These all are parts of digestive system. A structure of human digestive system. The human digestive system comprises of the alimentary canal and associated digestive glands. Human digestive system, alimentary canal और accessory glands हैं. Alimentary canal क्या है? Alimentary canal, it comprises of mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. Alimentary canal क्या है? ये
मुंह से स्टार्ट होता है ये ट्यूब और कहाँ तक जाता है, एनस तक जाता है। मुंह से स्टार्ट हुआ और गुदा तक जाता है। ये जो पूरा ट्यूब है ना, ये क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इट कंप्राइजेज ऑफ माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियास। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक आहार नली है। एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमंस इज अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। एलिमेंट्री कैनाल एक लंबा ट्यूब है जिसका डायमीटर वेरी करता होता है। इट स्टार्ट्स विद द माउथ एंड एंड्स विद द एनस। यह स्टार्ट होता है मुंह से और एंड कहाँ होता है, गुदा पे। माउथ से लेकर के एनस तक के का जो ट्यूब है ना, वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली, आहार नाल भी बोलते हैं इसको। फ्रॉम द माउथ टू द एनस द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल is a contiguous tube. An adult's digestive tract is about 30 feet, that's around 9 meter long. एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई है, आहार नली की जो लंबाई है, कितना होता है, अराउंड 30 फीट, दैट इज अराउंड 9 मीटर लॉन्ग। ओसोफेगस, stomach, small intestine and large intestine are the parts of the alimentary canal. Digestion starts in the mouth with the breakdown of large pieces of food into smaller particles. तो डाइजेशन है ना, वो मुंह से स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने मुंह में खाना को लिया तो उसका चेविंग, उसका चबाना, उसमें सलीवा का मिक्सअप होना, लार्ज पीसेस का ब्रेकडाउन होना स्मॉल पीसेस में, ये कहाँ पर होता है, मुंह में ही हो गया। तो डाइजेशन एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट हो गया, वो मुंह से ही स्टार्ट हो गया। क्योंकि जो भी चीज़ गई, हार्ड गया, सॉफ्ट गया, उसको आपने स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन किया विद द हेल्प ऑफ टीथ। उसमें सलीवा जो है मिक्सअप हुआ, वो फिर हलक के अंदर नीचे उतर करके ओसोफेगस के ज़रिए स्टोमक में पहुंचा। तो डाइजेशन एक्चुअल में कहाँ स्टार्ट हो गया, वो माउथ से ही स्टार्ट हो गया है। फ्रॉम द माउथ द फूड इंटर द फेरिंग्स। माउथ से, जैसे आपने मुंह में खाना को लिया, उसको चबाया, उसको निगला, निगला तो कहाँ गया, थ्रोट के पास, फेरिंग्स के पास गया। थ्रोट से कहाँ चला जाएगा, ओसोफेगस ट्यूब में जाएगा। ओसोफेगस ट्यूब का नेक्स्ट ओपनिंग कहाँ है, वो स्टोमक में है। तो वह ओसोफेगस ट्यूब से कहाँ चला गया, स्टोमक में चला गया। तो जो आपने खाना मुंह में ले करके खाया, चबाया, थ्रोट में लिया, थ्रोट में लेने के बाद वो कहाँ चला गया, ओसोफेगस ट्यूब के जरिए स्टोमक में चला गया। द फेरिंग्स रिसीव अ बोलस फ्रॉम द माउथ and passes it into the esophagus. The esophagus is the portion of the alimentary canal that connect the pharynx to the stomach. Esophagus क्या है, esophagus जो है वो pharynx को, throat को stomach से मिलाता है, कनेक्ट करता है pharynx to the stomach, pharynx को stomach से मिलाता है, throat को पेट से मिलाता है। The stomach store, dissolve and partially digest the food particles, and it regulates the rate at which the stomach's contents empty into the small intestine. स्टोमक में खाना पहुंचने के बाद वहाँ स्टोर होता है, डिज़ोल्व हुआ, पार्शियली डाइजेस्ट हुआ और उसके बाद स्टोमक से कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए। From the stomach, the food entered the small intestine, including the duodenum, jejunum and ileum. ये तीन पार्ट्स हैं
स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो खाना स्टोमक से कहाँ पहुँच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। फिर वहाँ पर जो है डाइजेशन के प्रोसेसेस चलेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन completes the digestion of carbohydrates, proteins and lipids. The small intestine absorbs about 90% of nutrients and water that pass through the digestive system. Small intestine जो है लगभग 90% न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को एब्जर्व कर लेता है। The large intestine is present after the small intestine. Small intestine के बाद कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन को। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाएगा। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। The large intestine comprises of cecum, colon and rectum. लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, सेकम, कोलन एंड रेक्टम। अब ये ध्यान रखिएगा, नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लेकिन ये जो है ना अराउंड 22 फीट होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन नाम है बड़ी आंत, बट ये कितना होता है? अराउंड 5 फीट होता है ये। तो फिर इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तो अराउंड 22 फीट है और लार्ज इंटेस्टाइन तो 5 फीट है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला? लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो ब्रॉड होता है, वो चौड़ा होता है, इसलिए हम उस आंत को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी चौड़ाई जो होती है ना वो कम होती है। उसकी चौड़ाई कम होने की वजह से उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत बोलते हैं उसको। बट लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन का ज़्यादा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका जो ब्रॉडनेस है लार्ज इंटेस्टाइन का वो ज़्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये ज़्यादा चौड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन, इसलिए इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन पतला होता है, इसका ब्रॉडनेस कम होता है, चौड़ाई कम होती है, तो हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या पार्ट्स हैं? सेकम है, कोलन है एंड रेक्टम है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स थे? अभी हमने पढ़ा, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। The large intestine absorbs some water, ions and vitamins, and it also stores indigestible material until it is eliminated at the anus. Large intestine जो है उसमें जो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हुए जिसको एलिमिनेट करना है एनस से, तो वो कहाँ बैठा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। वहीं से एनस के ज़रिए इजेक्ट होता है। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह गया ना वो उसका इजेशन एनस के थ्रू कहाँ से होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। बिफोर इजेशन कहाँ रहता है वो? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो आपने देखा प्रोसेस। करेक्ट सीक्वेंस क्या है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का? सबसे पहले खाना माउथ में जाएगा, माउथ के बाद वो कहाँ जा रहा है? ओसोफेगस में। वहाँ से कहाँ जा रहा है? स्टोमक में। स्टोमक से कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह गए वो एनस के ज़रिए बाहर हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। यहाँ देखिए, दिस इज फर्स्ट वन इज माउथ, सेकंड इज टीथ, दिस इज सेकंड इज टीथ, थर्ड इज सैलिवरी ग्लैंड, ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं इसको, ये क्या है? सैलिवरी ग्लैंड है जहाँ से सैलिवा सिक्रेट होता है। फोर्थ वन इज फेरिंग्स, जो थ्रोट है वो है फोर्थ, दिस वन इज फोर्थ फेरिंग्स। और फिफ्थ वन इज एसोफेगस, जो ट्यूब है आपका, जो फेरिंग्स से लेकर के स्टोमक तक कनेक्ट कर रहा है। दिस ट्यूब इज द एसोफेगस।
Fifth one is esophagus, and sixth one is liver. ये liver हो गया. This is sixth one, liver. 7 is stomach. ये जो आपका बैग टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज स्टोमक. 8th इज पैंक्रियाज. अब आप यहाँ देखिए, जो 8th है ये पैंक्रियाज को शो कर रहा है. 9 इज लार्ज इंटेस्टाइन. अब लार्ज इंटेस्टाइन को ध्यान दीजिए, ये क्या है, ब्रॉड है, चौड़ा है, बट लेंथ इसका 5 फीट के अराउंड होता है, कम होता है. सिंस इट इज ब्रॉड तो इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं. ये चौड़ा है, इस वजह से हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं. 10th इज स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज 10th. स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ अराउंड 22 फीट होता है, बट इसका जो ब्रॉडनेस है वो कम होता है, पतला होता है, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं. 10th इज स्मॉल इंटेस्टाइन. 11th इज rectum. This is 11th, rectum. And 12th is anus. This is 12, anus. This is human digestive system. अच्छे से देख लें, समझ लें. आज हम लोगों ने इस लेक्चर में एलिमेंट्री कैनाल को समझा. एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट एनस. It is around 30 feet long tube, and it comprises of mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. इसको हमने डायग्राम भी देखा. That's all for today. In the next lecture, I will discuss mouth, that is the buccal cavity. Till then, stay connected. Thank you so much.